जब आपके सामने एक साथ इतनी खूबसूरत लड़कियां हों तो मुझे लगता है कि कंफ्यूज होना लाजमी है कि आखिरकार मतलब एक फ्रेम इन सब की खूबसूरती को, टैलेंट को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। बट वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप लोग? Namaste. We are feeling very elated. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस दिन आप स्टेज पर गए थे कंपटीशन बहुत था, तो इस बात का था कि नहीं हम लोग टाइटल जीत कर आएंगे, और मैं एक एक करके चाहूँगी कि आप शुरू करें और इंट्रोड्यूस भी करें जो जो टाइटल आपने जीता है। Namaste, I'm Aishwarya, Miss Diva Fashion Designer 2025 and yes, competition बहुत ज़्यादा था पर बहुत सारे लोग बहुत talented भी थी, तो it was not like a competition हमारे लिए, it was more like a मतलब हम सब एक जगह पे आए एक कॉमन चीज़ अटेन करने के लिए, पर फिर भी वी वर गुड टू ईच अदर, हेल्पफुल टू ईच अदर, पर हमारे काम पे हम फोकस भी थी और दूसरी लोगों को हेल्प भी कर रहे थे, तो कंपटीशन जैसे नहीं थी पर वी वर वेरी, इट वाज अ वेरी फन एंड हेल्दी एक्साइटिंग, कंपटीशन, यस, वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो स्वीट। Namaste everyone, my name is Avni Gupta and I am Miss Diva Supranational 2025 and I will be representing India at Miss Supranational next year 2026. And if I talk about my journey in Miss Diva, I have a knack for camera. I loved being in front of the camera since childhood, but मैंने Miss Diva के लिए when I started prepping for it, I wanted to win it. मैंने enter ही इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक title जीतूँ and then I can represent my country at an international platform. But at the same time, it was not just a competition for me, but I had such a lovely time. If I talk about my fellow participants, the 24 wonderful ladies that were there, who were not just for the competition but to build good bonds and a memorable journey for the all of us. And if I talk about the team, the very supportive team, hardworking team, and the efforts of everyone culminated into such a grand finale, which happened a few days back. And I think it is one of the most memorable experiences of my life, and I'll always cherish them. स्वीट। I think in a pageant, before you do the talking, you do the walking, where your Yeah. stage presence is seen. And मैं 3 साल की थी जब मैंने stage enter किया first time. My parents saw the conviction and the presence I had on stage, and they're like, this girl belongs on stage. They put me into dance classes, they put me into music, violin, art, everything, and that made me a performer. I even performed at G20 summits in NMACC and so many other platforms. I have my own dance school also now. Yes. But right now in the pageant, did I know if I would win? Not really. I was not attaching myself to the results. I just wanted to stay in the present, और मैं चाहती थी कि मैं वो present को fully I wanted to experience it, and that's exactly what I did. And I prepared myself very well through the way I speak, through the way I present myself, just the appearance of it all. And maybe in the last few days, I knew I was pretty confident and I was standing out. And a lot of support was coming my way, not just from my family, but from these pageant pages, these supporters online. So that gave me this extra push. So I think it was like a festival, you know, Miss Diva. It was like Deepavali. Like you prepare for a puja, you light diyas. That was all this 5-6 days was like that. But the finale was a dhamaka with patakas and you know The Badi Diwali type. The Badi Diwali type. So that was how my finale was. And I think when I was performing itself, I felt that energy. You know, you feel that alignment. Like destiny is coming and meeting you. I felt that, and I was not attached to the result one bit. I knew it was coming to me. अरे वाह, इंटरेस्टिंग। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मोनिका डिसूजा है, मिस डीवा कंटेंट क्रिएटर 2025। जैसा कि आपने बोला, जर्नी एक्चुअली मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस था, बट जब मैंने बाकी लोग से मिली, जब मैंने उनकी जर्नी देखी, उनका काम देखा, तो मुझे भी लगा कि अब मुझे थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा। थोड़ा मैंने और टाइम रिफ्लेक्ट किया और अपने क्राफ्ट पे काम किया, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। तो मन में कहीं ना कहीं से था कि हाँ, जीतना तो था ऑब्वियसली। जब किसी भी चीज़ पे कोई कदम रखता है तो एंटर करता है
उसका मकसद जीतना ही होता है। बट ज़रूरी ये भी होता है कि हम उस जर्नी को एंजॉय करें, हम उस जर्नी से सीखें, हम आसपास के लोगों से सीखें, जो कि मुझे इसमें काफ़ी सीखने को मिला एज अ कंटेंट क्रिएटर। कई बार हम अपने एक जोन में रह जाते हैं, राइट। तो मुझे लगा मैं काफ़ी उस कंफर्ट जोन से बाहर आई, मैंने खुद को चैलेंज किया और ऑब्वियसली मैंने काम किया और मैं जीती और इतने अच्छे लोगों से मिली, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे वो ब्यूटी क्वींस हों, चाहे वो मेरे फैशन डिज़ाइनर्स हो। आई थिंक सभी काफ़ी इंस्पिरेशनल थे, सभी बहुत डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे को सीखने मिलते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपने धमाके की बात की, अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ तो जब रिजल्ट अनाउंस हुए उसके बाद सबसे पहली धमाकेदार चीज़ आप लोगों ने क्या की? I think my parents had flown down. I'm from Bangalore, Karnataka, and my brother is from IIT Madras. Oh, So they all flew in. even you have done aeronautical. I have done aerospace engineering. We are from a very academic background, and all of us topped in our respective backgrounds. I have beautiful parents who supported me, honestly. So when I saw my parents, we just hugged. We had a very nice family time together. They were in tears. They were enjoying. They were all smiling. We video called our families, and that was the most dhamakedar thing. You know, when your parents are together, when your family is together, you don't need anything else. And I'm waiting to go back home and celebrate New Year's with them. Wow. आपने क्या किया धमाकेदार? To be very honest, I checked my Instagram क्योंकि I knew that I won a title and I will be on the spotlight, and मेरे लिए सब बहुत नया है, मैंने कभी इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे बहुत था बहुत देखने का, बहुत मेरे को वो था कि कितने मेरे फॉलोअर्स बढ़े, कितने लोग मुझे सपोर्ट करें। कितने बड़े? मैम मेरे काफ़ी कम फॉलोअर्स थे, बट अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं। द एंगेजमेंट दैट आई एम गेटिंग ऑन माई सोशल मीडिया इज अमेजिंग, टच वुड। तो आई थिंक सोशल मीडिया टीम आई थिंक ये भी आजकल अब जैसे मैं आगे सुप्रा नेशनल के लिए भी जाऊंगी, तो मुझे अपने एक कम्युनिटी बनाना है, मुझे सपोर्ट चाहिए लोगों का, क्योंकि अगर मैं इंडिया के लिए जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया के लोग मुझे सपोर्ट करें इस जर्नी में, एंड ऑब्वियसली माई फैमिली वर देयर, सो आई स्पेंड टाइम विद देम। So I'm from Chennai, and my family couldn't be there because it's really far away. But जब finale ख़त्म हुई और मेरी award मिली, first thing I did was I just ran backstage. I did not wait for anybody. I just ran, and first things first, I dialed my parents and I showed it to them and dedicated Video the call. trophy. Yes. Wow. And I started crying really bad. My makeup was running. तो मेकअप की चिंता हो रही थी? वापस स्टेज पे भी जाना है ना. girls will be Yeah, actually. But that was like the best moment when I shared it with my parents and dedicated it to them. You have a very beautiful eyes, huh? Thank you so much. और आपने क्या किया धमाकेदार? मैं अगर सच बोलूँ, मैं अभी भी वो फीलिंग सिंक इन कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि जैसे ये ख़त्म हो, ऑब्वियसली इन सब का एक कैटेगरी था वो चालू हो गया और फ़ोन आने लग गए, तो बस मैं बताने लग गई। पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, दे कंग्रेचुलेटिंग, बट मेरी मम्मी का एटीट्यूड रहता है कि उनको पता है कि मैं जीतने वाली हूँ, मतलब पता नहीं वो पेरेंट्स का इंस्टेंट होता है कि क्या होता है कि वो कभी सरप्राइज ही फील नहीं करती कि मैं कोई भी अचीवमेंट बता दूँ। मुझे पता वो कॉन्फिडेंस होता है ना। हाँ, कर लूँगी। आई थिंक उनको इतनी आदत हो गई है कि मैं कर लूँगी वाला, कि अब मुझे ही आदत हो गई है कि मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लग गया अब। बट जैसे ये सब खत्म हुआ, मेरा अगले दिन सुबह 7 बजे शूट था, तो आई थिंक 3-4 बजे मैं घर गई हूँ और अगले दिन मैं शूट पे सुबह निकली हूँ। फिर रात को इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई, फिर मैं आज यहाँ हूँ। तो मुझे, अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ आपके साथ, मुझे वो टाइम नहीं मिल पाया कि वहाँ तक बैठ के अपनी ट्रॉफी के साथ और एक फ्लैशबैक मेमोरी लूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक आई हूँ। बट जब मैं आपसे बात करती हूँ और जब ये सब लोग को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअली ये अचीवमेंट है, बस मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होना है थोड़ा। आई थिंक आई वुड नीड अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी। ओके, जैसे कि इन्होंने इंस्टाग्राम फॉलोअर की बात की, तो मुझे लगता है कि स्पेशलाइज्ड है वो तो नहीं मोनिका, उसको पता है कि कैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने, राइट? तो चलो एक एक टिप देनी हो इन तीनों को, तो क्या दोगे? मैम कंसिस्टेंसी। आई थिंक मेरी आज ही अपनी से बात हो रही थी, अपनी गुप्ता से मेरी बात हो रही थी, मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ द वन थिंग यू विल से, और मैं बाकी लोगों को ये बोलती हूँ कि हम बहुत बार एज अ क्रिएटर, एज अ यंग गर्ल और एनी बडी, एज अ बॉय ऑल्सो, मेरे दोस्त भी काफ़ी जो बनना चाहते हैं, वो वेट करते हैं कि नहीं, आज मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं कल शूट करूँगी। मैं शाम को करती हूँ, मैं मुँह धो के मैं नहा के करूँगी। फिर अब मैंने खाना खा लिया, मैं ब्लोटेड लग रही हूँ, मैं सो के उठ के करती हूँ।
तो ये नहीं सोचना है। मैं भी सोचती थी, इसलिए बहुत टाइम तक मैंने बहुत पहले चालू कर सकती थी, जो मैंने किया नहीं। आई थिंक आपने जब सोचा आप कैमरा खोलिए और आप चालू हो जाइए। मतलब नो राइट टाइम, बीइंग हाँ। कंसिस्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन बीइंग ब्यूटीफुल, बीइंग गॉर्जियस। काल करे सो आज का। कल करे सो आज कर। आई थिंक रिफ्लेक्टिंग वो आपकी रियलिटी दिखाता है। जितना बन ठन के डेकोरेट होके वहाँ जाती है सज धज के, वो थोड़ा बनावटी लगता है। आई थिंक जितना रॉ रहेंगी, जितना आपको ऑडियंस मेकअप, बिना मेकअप, उठते सोते जागते देखेंगी, वो उतना आपको अडेप्ट करेंगे और आपकी जर्नी अपनी जर्नी से रिलेट करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, मतलब है ना। तो चलिए, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर मैं आपको चैलेंज करूं इन तीनों को एक ऐसा मतलब फैशन, तो आपको क्या लगता है कि क्या इन पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा? I know I'm a fashion designer, but she's a fashion creator and they're beauty queen. Do I really have to tell? Smart. I mean, we try to dress for the cameras sometimes. Cameras के लिए हम एक कैजुअली आप personality. कैमरा भूल जाइए। अगर आपको कहा जाए कि एक आउटफिट डिज़ाइन करने के लिए, तो किसको क्या देंगी आप? अच्छा, ओके, पर्सनालिटी वाइज किसको? ओके, मुझे अवनी गुप्ता लगता है बहुत ड्रीमी एंड फेमिनिन बट स्ट्रॉन्ग एंड एलिगेंट लगती है। तो फॉर हर वेरी नाइस कॉर्सेट वाइट ड्रेस विद क्रिस्टल्स, यू नो, वो वाइब देती है मुझे। एंड आर मिस कॉस्मो, she is a very strong woman, she gives the power, she gives aura, she gives strength. And for her it would definitely be a red, bold red, and with, you know, nice strong statement piece. And for our content creator, she's a very, you know, she's also very smart but a very peppy girl with a very nice persona. So I think by interacting I've also come to know their personality. So for her it will be something dazzling for sure. Dazzling, and I'm sure these people know to dress better. She's given such a right, I think, for all of us. बट एक चीज़ आपने नोटिस की, उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को मतलब रिलेट करते हुए किया है। Yeah, that is exactly what a fashion designer should be doing. या जो आजकल मिसिंग लगता है मुझे एक्चुअली। मुझे वही एक बिलीफ भी है कि whatever you design or dress, वो at least some part of you should carry it through your outfit, like show it. अवनी, जब आपने अपना पहला इंस्टाग्राम बनाया था तो सबसे पहले किसको फॉलो किया था? प्रॉबेबली माय फ्रेंड जिसने मुझे बनवाया था इंस्टाग्राम। उसने सबसे पहले अपना ही follow क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत पहले जब मैं स्कूल में थी तब ऐसे ही बना लिया था। एंड तब आता भी नहीं था कैसे बनाते हैं, तो जिस फ्रेंड ने हेल्प किया उसको ही ऐड कर लिया। अब जैसे धीरे धीरे जैसे हम लोग सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, ठीक अब हमने रियलाइज़ किया है, जब मैं देखती हूँ इतने इतने सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कर सकते हैं ये सब। एंड आई थिंक कूडोज टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जो इतनी मेहनत करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कैमरे के सामने वी हैव टू पोस्ट, बट इट इज़ नॉट ईजी। या ट्रू। मैं आपसे जानना चाहूँगी अवनी, आपने बताया कि आप एकेडमिक्स में और बाकी आपने बताया कि आपका डांस स्कूल है, बहुत आपने अचीव किया है, पर एक कोई ऐसी चीज़ जो आपका ड्रीम था और अचीव करना चाहती थी और जहाँ आप नहीं कर पाई और आपको रिग्रेट रहा? I always wanted to come to pageants because मुझे ये सब फील्ड्स में करते हुए वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि माई एनर्जी इज़ गोइंग टू डिफरेंट टेंजेंट्स ऑफ लाइफ, और मैं चैनलाइज करना चाहती थी, और पैजेंट्स एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, स्पेशली इन अ पैजेंट लाइक मिस कॉस्मो. इट्स अ वेरी मॉडर्न पैजेंट वेयर यू आर नॉट जस्ट टेस्टेड ऑन योर रैम्प वॉक और योर स्पीकिंग skills, but your entrepreneur skills and your leadership skills as well, which is very much necessary and relatable to modern world, right? So that kind of attracted me, but I did try 1 or 2 years, but I never made it. And I was like, why is it not happening? What is lacking in me? But I did come back consistently. I came back again and again. And this year, they placed me rightly at Cosmo, where I actually belong. Maybe other pageants I don't relate to that much, but Cosmo is the place where I can bring in my leadership, my vision board, my vision and my business statements there. So I think destiny meets you somewhere. So all my achievements it feels like it's all
settling down in the right place, in the right time. वाओ। मोनिका, आपसे जानना चाहूँगी, मैंने सुना आपकी एक रील 30 मिलियन है, राइट? तो उसके अलावा जो है आपको क्या लगता है कि उस रील में ऐसा क्या खास था जो बाकी रील्स में नहीं था आपकी? मैम, मैं हमेशा, आप जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि मैंने क्या अच्छा किया। मैं फीडबैक लेना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने इमीडिएटली एजेंसी के थ्रू वो वर्क आया था, तो मैंने इमीडिएटली एजेंसी को मैसेज किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू कैन आस्क कितना क्या अच्छा लगा कि दे आर बाइंग देयर कंटेंट टू प्ले अगेन एंड अगेन। तो जबकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उस रील में भी, तो ब्रांड का जो भी मैसेज आया उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, जो अभी भी मेरे पास है। उन्होंने कहा, आई थिंक मोनिका हैज़ स्टाइल्ड अ सिंपल लुकिंग क्लोथ्स टू अ वे इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स स्टैंडिंग आउट, यू नो, शी हैज़ पुट अ यूनिक पर्सपेक्टिव हर एक आउटफिट में, चाहे वो बॉस लेडी हो या फिर एक कॉफ़ी गर्ल हो या गर्ल नेक्स्ट डोर हो। सो काफ़ी वेरिएशन दिखाए हैं उसने, जो आई थिंक हमने किसी और क्रिएटर में उस वक्त नहीं देखा था। तो मुझे ये फीडबैक ब्रांड का काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारे फीडबैक्स है जो मैं हमेशा क्लाइंट को पूछती हूँ। मैं हमेशा, जब काम अच्छा होता है, मैं ज़्यादा फीडबैक मांगती हूँ। वाओ। और बुरा होता है तब? नहीं, मैं डेफिनेटली ज़्यादा, बट लकीली मेरा ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, क्योंकि मैं बड़े क्लियर रहती हूँ अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज़ के साथ में। बुरा इन द सेंस ऑफ 30 मिलियन की जगह 1 मिलियन व्यू आए तब सोचती है कि इसमें क्या? ऐसे ब्रांड्स रहे हैं। जब इनिशियली स्टार्ट किया था, तो जैसे बहुत ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जो बोलते हैं वो हमने ऐसा सोचा था बट इतना हो नहीं पाया। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, बट मुझे लगता है जब ब्रांड सेल के पर्पस से नहीं आ रहा हो, ब्रांड से डिस्प्ले के पर्पस से आ रहा हो, और आपके ऑथेंसिटी अपने ब्रांड के साथ कोलैब करने आ रहा हो, दैट्स कॉल्ड रियल कोलैबोरेशन। वरना फिर सब एक एड पीस बन के रह जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पहले ऐसे ब्रांड को गेस कर लूँ। लकीली मैं इस पोजीशन पे हूँ आज कि मैं हाँ या ना बोल सकती हूँ। वाओ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले ब्रांड एक्सपेक्टेशंस जान लूँ। ओनली इफ आई कैन डिलीवर, इफ मैचेस माई एथिक्स वैल्यूज, आई कंटिन्यू विद। ओके, आप तीनों से जानना चाहूँ तो आपकी हाईएस्ट रीच जो किसी रील को गई हो कितनी है? 28.8 million. Oh, wow. वाओ, नॉट बैड। I had done this very authentic reel, so I was getting into a character of this Yakshagana. It's a South Indian Mangalorean art form, Yakshagana. I'm sure you would have heard of it. It is a dance form with also speaking and live orchestra. So I was getting ready into it, and it has this heavy headgear, heavy costume. It's about 10 kgs here and 15 kgs on the body. So I was getting ready into that, and my mother was just clicking BTS karke how to get into that costume. So she wanted to learn it, so she was just clicking on her phone. So I randomly just edited it out when I was having dinner, and I just posted it, and people were like, "Damn, this is how people get ready for it." They didn't know about it, right? So that went up to that much. So मुझे लगता है वो मम्मा की नज़र से जो खींची हुई तस्वीरें है ना, उसने कमाल कर दिया। My good luck. It's always a low effort and realness That people like, and I was so after an hour when I check it is 1 million. I'm like, what is happening? And back then I just had like 5k followers. Oh, really? Yeah, and then boom, it became 10k. What about you? As I said, ma'am, for me this is all very new. मेरा तो the reel that boosted was the one where I won Miss Diva. तो उसमें I got so many views and comments. Yeah, that's why I realized कि कितना important है ये चीज़, and मुझे कहीं से head start मिला. मेरी कोई reel viral नहीं हुई, but ऐसे head start मिल रहा है, तो I'm very happy. I think same. Even I'm not very social media person. मतलब मैं try करती हूँ पर नहीं होगा. I think अभी तक I would have posted like 5 reels ऐसा बस जब time pass के लिए ऐसे I post. But one reel that I made by myself for my garment जो मैंने किया है just to show the steps of how I made that garment, that I just posted when I had like very little followers only, and that reached up to 20k views. And I think the highest, if I have to say, it's the one with Miss Diva, the one where I got the award. That got a lot of views and engagement. So yeah. Another reel of mine that is going right now is so my brother studies in IIT Madras, right? So there are like deers and a lot of animals inside. It is in Gindi Wildlife Park itself, so it's a very it's actually a national reserve, and it is a wonderful place to be. And there are black bucks also inside the place, and they just go around. You can pet them.
So I was just randomly clicking, and you go around in a cycle, and it's a 700-acre campus. So you just go around in a cycle. I was just clicking all of that, and that also is going for millions, and it's a very low effort reel that I It did. is random. वही बात उन्होंने जो है जो बताया टिप दिया वो यही है. Yes. This is So reality. I was just Actually. clicking. I was very without makeup, without hair. I was just seeing the place and recording it for myself, for my memory, and I just put it all together, and it went pretty well. मुझे लगता है वही है, लोगों को वही पसंद है, they want to rawness, see new natural places. चीजें. Honest. And people don't get to go into IIT Madras on a regular day, so they're like, okay, wow, this is how it looks on the inside. Yeah. तो चलिए आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि जब आप लोगों को स्टेज पे देखते हैं तो लोग बोलते हैं वाओ कितनी सुंदर है, वाओ कितने मतलब नेचुरल हैं या कितने मतलब हाजिर जवाबी हैं, पर मुझे हमेशा ये लगता है कितनी ब्रेव हैं. मतलब सच में इतने सारे लोग बैठे हैं और कुछ भी सवाल आ जाएगा और उसी समय जवाब देना है, तो मुझे उसमें लगता है कि एक वो चीज़ होनी चाहिए. तो रैंप वॉक और इसके अलावा कोई एक बहुत बड़ी ब्रेव वाली चीज़ आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में की हो जो हमेशा याद रही हो? I come from an Orthodox family, to be honest, and I was really hesitant to wear a bikini, and I was not very comfortable with my body. So, in But front you have of my beautiful body, मतलब toned perfect body actually. I actually won Miss Body Beautiful. Yeah, मैंने सुना जब आप इंटरव्यू दे रही थी. Thank you. Congratulations. So I was not very comfortable with that, especially to walk in front of my parents. So I had to overcome it. I had to sit through it, and I had to say this is just to test my fitness and my confidence, how I accept my own body. So I had to overcome it within me, and post winning Miss Body Beautiful, I'm like, yes, let's go, let's do this, because they're not judging you on what kind of clothes you're wearing. It's just for fitness. So I had to talk myself through it. And with respect to ramp walk and talking, I think it naturally came to us post training and years of efforts. It's not a 1 or 2 day thing. But when you have to wear clothes that you have not worn often, especially in a country like ours, it took some guts. Yeah. पर कितनी अच्छी बात है, जिस चीज़ से आप डर रही थी उसी का टाइटल भी जीता. Yeah, exactly. I think that was pretty validating for me, and I overcame it, and it'll definitely show on my international performance. When I go to Miss Cosmo, I'll probably do like 10 times better. वो मुझे वो टैगलाइन याद आ गई, डर के आगे जीत है. Yes, that aage jeet, exactly. I think that's exactly how I Yeah. won over it. Yeah. What about you, Avni? मैम टू बी ऑनेस्ट मैं आई वॉज वेरी शाई एंड अंडर कॉन्फिडेंट. पहले मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट भी थी एंड अभी भी हूँ इंट्रोवर्ट, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था पब्लिक में बोलने का. एंड पैजेंट में जब मैं आई एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू नीड टू बी सो वोकल, वेदर इट इज़ इंटरव्यूज़ और ऑन द स्टेज यू नीड टू गिव योर Q&As, आपका ज्यूरी सेशन होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं. सो यू नीड टू बी वोकल, यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर वर्ड्स, एंड दैट फॉर मी वॉज अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी. एंड मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ, इवन माई फैमिली नोज दिस. तो मेरे लिए वो मुश्किल था कि वो कॉन्फिडेंस लाना, वो रियलाइज़ करना कि यू नो कितना इम्पॉर्टेंट है एक एम्पावर्ड वुमेन के लिए, एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए, कि वो कॉन्फिडेंटली अपना स्टैंड ले पाए और जो उसको लगता है वो एक्सप्रेस कर पाए लोगों के सामने, चाहे 100 लोग हों या 1 हो या 1000 लोग हों, कैमरेज हों या कुछ हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए. व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ यू शुड जस्ट speak what you think from your heart. So that was a challenge for me, and I think I have overcome it after winning Miss Diva. I think मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, Q&A दिया, ज्यूरी. सुबह 8 बजे से दे रही है. हाँ जी. So I think I am. Yeah. I'm learning I all love this, what we and then do. when I'll go for the international pageant also, तब और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड तब और ट्रेनिंग ज़्यादा. अच्छी चल रही है. मैम It अभी hasn't तो हम started लोग yet. सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा विन, बट ट्रेनिंग फॉर श्योर स्टार्ट हो जाएगी मेरी, और जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मंथ्स में आई विल बी लीविंग फॉर सुप्रा नेशनल, तो आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. All the best for that. थैंक यू सो मच. For me, I'll have to say, right before Miss Diva, I was working in a retail, corporate fashion retail company in Mumbai only. But I was interning there for 4 months.
as soon as my internship got over, placements का time हुआ, and I took a very bold step, and then they offered me a job, and then I rejected it. I turned it down. A well-paying job, I turned that down so that I can make clothes and then pursue something that I artistically am inclined to. And that's when Miss Diva opportunity came by. It is not something I planned for, but that just it's like destiny just passed by me and gave it to me, because I was looking for an opportunity, I think. And then that's when my window was fully open, and I was fully focused on Miss Diva as well. And then I was making clothes, and then I was designing, and I was also working on my personal projects. While that happened, I think now that after winning the title Fashion Designer 2025, I don't think if I had taken that job back then, I would be able to accomplish all this that I've done right now. So that one bold step has given me. वही लाइफ में रिस्क लेना जो है Yeah. बहुत कम लोग लेते हैं. Yes, sometimes हमको नहीं पता है कि अगर it will pay off or not. But if you really strongly believe in something, you have to take the plunge. आपने दिल की सुनी. हाँ, बहुत. वेरी गुड. What about you? मैम आई थिंक जब मैं 17 इयर्स की थी एंड मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी, एक्चुअली पहली बच्ची थी जो अपनी सिटी से बाहर निकल के मुंबई या शहर में आई, और सब कुछ खुद से किया. कई ऐसे मौके आए कि लगा कि नहीं अब चल देना चाहिए, मे बी स्मॉल टाउन है, स्मॉल इनकम स्मॉल स्टे ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मुझे लगा नहीं, दिस इज़ द लाइफ आई वांट टू लिव एंड मैं अचीव करके रहूँगी. सो जब भी वैसे मौके आए मैंने कभी गिव अप नहीं किया. मैंने हमेशा अपने एथिक्स वैल्यू को ऊपर रख के बिना समझौता कि हमेशा एक ऐसा रास्ता चुना. इसलिए मैंने एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी है कि एजुकेशन विल ऑलवेज फीड मी बट माई पैशन विल ऑलवेज फ्यूल मी. तो मैंने वो लॉजिक को रख के हमेशा अपनी जर्नी चालू रखी, एंड दोनों ने मुझे अच्छी बेनिफिट दी है. और टॉकिंग अबाउट सेकेंड ब्रेवेस्ट डिसीजन वुड बी हियर. जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी काम अभी किया है कंटेंट क्रिएशन में. उसके बाद जैसे काफ़ी लोगों ने बोला तुम्हें ज़रूरत नहीं है शायद इसमें जाने की, तुम तो खुद को चैलेंज कर रही हो, तुम हार गए तो लोग बोलेंगे कि शायद तुम हार गई, बहुत न्यू है, नए लोग भी हैं. मैंने बोला कि इट्स ओके, मेरा हारना जीतना मुझे डिफाइन नहीं करेगा. मैं इस लेवल पे भी स्टेज पे भी मैं चैलेंज लेने को तैयार हूँ. आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट माई सेल्फ कि मैं हार और जीत पे बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ कंस्टेंटली काम करने पे बिलीव करती हूँ. वाओ. तो मुंबई जो सपनों का शहर है उसने आपके सपने पूरे किए, राइट? मैं अभी सबको यही बोल रही थी, आपने मुझे फिर वही चीज़ पूछा. जब मैं जीती तो जैसे एक मोमेंट था, मेरे भाई का मुझे मैसेज आया, उसने मुझे कंग्रेचुलेट नहीं किया. भाई बहनों के बीच में कन्वर्जेशन होती है, वो बाहर पढ़ रहा है, वो भी जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी आ नहीं पाया. अभी मैं मिल के आई उससे, यूरोप में थी मैं उसके साथ अभी काफ़ी टाइम तक. तो उसका मुझे पहले मैसेज आया कि मुंबई ने आपको एक्सेप्ट कर लिया. इसका वाकया ये था कि मैंने बहुत पहले बोला था कि मुंबई बुलाता तो बहुत लोगों को है बट अपनाता बहुत कम लोगों को है. आई थिंक मैं उसको बहुत पहले ये बात बोली थी जब वो बहुत छोटा था और मैं भी बहुत छोटी थी. कई बार बोली थी उसके बाद. तो जब मैं जीती तो मुझे जैसे गूज बम्स आए कि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन से कुछ फील नहीं हुआ, जो मुझे उससे फील हुआ कि आपको मुंबई ने अपना लिया. लास्ट ईयर मैंने अपनी खुद की कार ली, इस साल मैं अपने घर लेने का प्लान कर रही हूँ. तो आई थिंक वो सारे मोमेंट्स आई थिंक इस एज पे 27 साल की उम्र में आई थिंक काफ़ी मेरी जर्नी रिफ्लेक्ट करती है. वाओ. तो चलिए, थैंक यू. और मैं आप सभी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी आप सबके जो है जो सपने हैं वो पूरे हो, और आप टाइटल्स जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो भी जीत कर आएँ. थैंक यू. थैंक यू.